So good evening students, how are you? I hope you all will be very much fine and will be enjoying a healthy life at home. So today is the turn of doing a chapter pronoun. Before I explain you what is pronoun, first we will do what is noun. So a noun is a word that names something, either a person, place or thing. In a sentence, nouns can play the role of subject and object too. So noun, we have been doing noun since childhood. Noun किसी person, place और thing के name को बोलते हैं. So the room in which you are seated right now, there can be so many nouns around you like fan, bed, table, chair, and pillow, bed sheet, mobile. All these are nouns. So here the looks, please. Art, bed, basket, tub, truck, hand, wall, jug, knee, juice, female. All these are nouns. Now look at pronoun. A pronoun is a word that takes the place of a noun. तो जो noun की place पे यूज होते हैं उसे हम pronoun बोलते हैं. See the sentence: Ram saw Robert and he waved at him. So in spite of using Ram, I have used he here. So he is a pronoun. For male we use he, for female we use she, and for things and animals we use it. For non-living things we use it. जैसे Ram is doing work, Ram is eating food, Ram is working hard. So in spite of using Ram two times, I will use he. Ram is doing hard work, he is eating food, and he is doing work properly. Now come to the types of pronoun. So in your book we have 8 types: personal pronoun, demonstrative pronouns, possessive pronouns, interrogative pronoun, reflexive pronoun, and emphatic pronoun, and the reciprocal, and the last one is indefinite pronouns. First, personal pronoun. They refer to specific person, object or group of things. So personal pronoun is that you use for yourself and for others, like I, me, my, he, she, it, they, them, you, yours. ओके जैसे अगर आप अपने बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में बात करोगे तो फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? आई, मी, माई, वी, आर, आर्स. ये फर्स्ट पर्सन हो गया. सेकेंड पर्सन मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो यू, योर्स सेकेंड पर्सन होते हैं. थर्ड पर्सन, जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे, देम, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं. तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन मीन्स आई, मी, माई, वी, आर, ही, शी, इट, दे, यू, योर्स. ठीक है, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है. नाउ कम टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. We have 4 demonstrative pronouns, that is this, that, these and those. For one thing we use this, for so many things we use these. For one thing we use that, for so many things we use those. Now what is the difference between this, that? This we use for nearby things. जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसके लिए हम this use करते हैं. जो चीज़ें हमसे दूर होती है, far away, we use that. In the same way, अगर बहुत सारी चीज़ें दूर हैं हमसे तो we use those. And if though so many things are close to us, we use these. जैसे this is a video that you are watching. ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, this, ये वीडियो अभी आपके पास प्ले हो रही है. जो चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे मैं बोलूँ that movie was very nice, कि वो मूवी बहुत अच्छी थी, तो मैं उस मूवी की बात करूँ जो भी हमारे सामने प्ले नहीं हो रही है, तो we use that for it. Now come to the third, possessive pronoun. पोजेसिव का मतलब ही है कि पोजेशन शो करना, कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, ये तुम्हारी है. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, दीज बुक्स आर माइन, कि ये बुक्स मेरी है. द नेकलेस इज योर्स, ये तुम्हारा है. द कैट इज हर्स, ये कैट उसकी है. द बुक्स आर हिज, ये बुक्स उसकी हैं. दिस ग्लास इज आर्स, ये ग्लास हमारी है. तो इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं. अब देखो ये जो माई बुक, योर नेकलेस, हर कैट, हिज बुक, इट्स फॉर, आर ग्लास, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है. जब एट द एंड आते हैं वर्ड्स जैसे माइन, योर्स, हर्स,
ये सब होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। माई पर्सनल प्रोनाउन है तो उसका पोजेसिव क्या बन जाएगा, माइन, ठीक है। देन हर पर्सनल प्रोनाउन है, उसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन गया, हर्स। योर क्या पर्सनल, ये पर्सनल प्रोनाउन है योर, तो इसका योर्स क्या बन गया, पोजेसिव, ठीक है। मे का माइन, योर्स, हर्स, हिज का हिज रहता है, देन आर का आर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव, बहुत ईजी है, जिसमें क्वेश्चन पूछा होगा वो इंटेरोगेटिव होगा। व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई, ये सब क्या है आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, हुज शर्ट इज दिस। कम टू द फिफ्थ एम्फेटिक प्रोनाउन। ये जो आपके होते हैं ना, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ये सब आपके एम्फेटिक प्रोनाउन हैं। जैसे आई माई सेल्फ कुक्ड, कि मैंने इसको खुद बनाया है। शी हर सेल्फ, इमीडिएटली सब्जेक्ट के इमीडिएटली जो प्रोनाउन आता है उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये सब्जेक्ट है आई, शी, दे। शी के लिए क्या लग गया, हर सेल्फ, आई माई सेल्फ, दे देम सेल्फ। ही के लिए हिम सेल्फ लग जाएगा, यू के लिए योर सेल्फ लग जाएगा, ठीक है। अब एक और प्रोनाउन करते हैं रिफ्लेक्सिव। देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। इसमें भी वही लगता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, बट ये कि इन एम्फेटिक प्रोनाउन वी यूज माई सेल्फ, हर सेल्फ इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट, बट इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी यूज इन द मिडल, एट द एंड भी यूज कर सकते, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, शी यूजली टॉक टू हर सेल्फ, डेविड रीड क्वाइटली टू हिमसेल्फ। तो जब हम कोई भी प्रोनाउन ये रिफ्लेक्सिव ये वाला यूज़ करते हैं, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। एम्फेटिक में इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद आता है, और रिफ्लेक्सिव में इट कैन कम इन द मिडल और एट द एंड ऑल्सो। नाउ रेसिप्रोकल सिंपल है, जहाँ पे वन, अनदर और ईच अदर वर्ड आ जाएंगे वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ये सिर्फ टू ही है, वन, अनदर और ईच अदर। जब दो लोगों के बारे में बात हो रही है, जैसे जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, तो वहाँ पे हम ईच अदर वर्ड यूज़ करते हैं। जब दो से ज़्यादा लोग हों, जैसे दी 10 prisoners वर ऑल ब्लेमिंग वन अनदर, कि वो 10 के 10 प्रिजनर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। 2 persons ईच अदर, देन मोर देन 2, देन वी यूज़ वन अनदर। भाई ये 2 ही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लास्ट इंडेफिनिट, ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। नोबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, एवरीवन, एनीवन, समवन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जहाँ पे भी ये यूज़ होंगे, जैसे एवरीबडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, I opened the door but there was no one at home. So as per the sentence we fill the word. I hope you must have understood. Thank you so much and have a nice day.